ناروے کے برفیلے جنگلات میں ایک اسپتال ہے جو کبھی بند ہوا ہی نہیں، بس انتظار کرتا ہے کہ کون اگلا دروازہ کھولے گا۔ ناروے کے ٹھنڈے سنسان جنگلات میں کچھ ایسی سرگوشیاں باقی ہیں جو دیواروں سے نکلتی ہیں اور انہیں دوبارہ آنے کا انتظار کر رہی ہیں۔ یہ کون برگن شہر کے اوپر آسمان سلیٹی اور بوجھل تھا، جیسے بادلوں نے فضا کو دبا رکھا ہو۔ سرد ہوا نے پیڑوں کے زرد ہوتے پتوں کو زمین پر بکھیر دیا تھا۔ ایک سیاہ وین ایک خستہ حال جنگلاتی راستے پہ چلتی جا رہی تھی۔ ٹائروں کے نیچے کونکر اور سوکھے پائن کے پتے چرچرا رہے تھے۔ وین کے اندر 5 نوجوان بیٹھے تھے، سب کے سب جیکٹس اور ہوڈیوں میں لپٹے۔ یہ سب اربن لیجنڈ ہنٹرز کہلاتے تھے، یعنی پرانی اور پراسرار جگہوں کی تلاش کرنے والے۔ آج کا ان کا ہدف تھا ایک ایسا اسپتال جو اب کسی نقشے پر موجود نہیں تھا، کالڈ ہائم پاگل خانہ۔ الیاس، جو لمبا اور سنجیدہ مزاج لڑکا تھا، اس کے ہاتھ میں جگہ کا پرانا خاکہ تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی میکل ہاتھ میں ویڈیو کیمرہ لیے ہر لمحے کو فلم بند کر رہا تھا۔ ان کا دوست یوناس، مذاق اڑانے والا اور خود پسندی کا شکار، پچھلی سیٹ پہ بیٹھا اونگ رہا تھا۔ 2 لڑکیاں، آسٹرڈ، ایک بے خوف اور تجسس پسند لڑکی، اور لیوو، خاموش طبع مگر بہت ذہین، سامنے نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ ماحول میں خاموشی تھی مگر ایک انجانی بے چینی گھلنے لگی تھی۔ کالڈ ہائم 1920 کی دہائی میں تعمیر ہوا تھا اور 1984 میں اچانک بند کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں ذہنی مریضوں پر وحشیانہ تجربات کیے جاتے تھے، جیسے جبری لیبوٹمی، سرد پانی کے علاج اور خطرناک دوائیوں کے تجربات۔ لوگ کہتے تھے کہ آج بھی وہاں سے رات کے وقت چیخوں کی آوازیں آتی ہیں۔ مل گیا، الیاس نے کہا اور وین رک گئی۔ ان کے سامنے زنگ آلود گیٹ تھا جس پر کائی اور جھاڑیاں اگ چکی تھیں۔ اس کے پار ایک پرانی عمارت کھڑی تھی، 3 منزلہ، کھڑکیاں بند، دیواریں سیمنٹ کی ہڈیوں کی طرح بوسیدہ۔ گیٹ پر ابھی بھی مدھم الفاظ میں لکھا تھا، کالڈ ہائم پاگل خانہ، ذہن سے آگے علاج۔ انتہائی خوفناک، یوناس نے ہنستے ہوئے کہا، چلو تاریخ رقم کرتے ہیں۔ اسپتال کے اندر کی ہوا باسی تھی، مٹی اور پھپھوندی سے بھری۔ ان کے ٹارچوں کی روشنی اندھیرے کو چیرتی ہوئی چل رہی تھی۔ کفرنگ یونس نے ہنستے ہوئے کہا، چلو تاریخ رقم کرتے ہیں۔ اسپتال کے اندر کی ہوا باسی تھی، مٹی اور پھپھوندی سے بھری۔ ان کی ٹارچوں کی روشنی اندھیرے کو چیرتی ہوئی چل رہی تھی۔ پرانے اسٹریچر، اکھڑی ہوئی وال پیپر اور خالی ویل چیئرز ان کے سامنے آ رہے تھے۔ ہر قدم کی بازگشت دیواروں سے ٹکرا کر ایسے واپس آتی جیسے کوئی پیچھے چل رہا ہو۔ آسٹریٹ نے دیوار کو چھوا۔ یہاں باہر سے زیادہ سردی ہے، اس نے کہا۔ وہ تجربے کہاں ہوتے تھے؟ مکل نے پوچھا، کیمرے کو ایک ٹوٹے ہوئے آپریٹنگ ٹیبل پر مرکوز رکھتے ہوئے۔ الیاس نے نقشے کو دیکھا، نیچے والے حصے میں، سب لیول بے۔ عملہ اسے خاموش ونگ کہتا تھا۔ جب وہ نیچے کی طرف بڑھنے لگے، عمارت جیسے سانس لینے لگی۔ پائپوں کی کراہ، بند دروازوں کی چرچراہٹ، سب کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ سیڑھیوں کے پاس ایک دیوار پر خراشوں سے لکھا تھا، یہاں مت رکو۔ یونس ہنسا، ارے خوش آمدید کا پیغام ہے۔ انہوں نے کیمرے کی خرابی نوٹ نہیں کی۔ مکل کی سکرین ایک لمحے کے لیے جھپکی، اس میں سفید سا دھندلا چہرہ ایک لمحے کو جھلکا۔ جاری ہے۔ سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں، تاریکی بڑھتی جا رہی تھی۔ ان کے قدموں کی چاپ جیسے بہت دور تک گونج رہی تھی، جیسے کوئی اور بھی نیچے موجود ہو۔ دروازے پر پہنچ کر الیاس نے زنگ آلود ہینڈل گھمایا۔ دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا اور ایک بدبودار، نمی زدہ ہوا ان کے چہروں پر چھا گئی۔ کمرہ لمبا اور تنگ تھا، دیواریں نم اور چھت پر پانی کے دھبے۔ دائیں طرف ایک پرانا نرسنگ اسٹیشن تھا جس کی شیشے کی کھڑکی ٹوٹی ہوئی تھی۔ اندر فائلوں کے ٹکڑے اور کچھ پرانے انجیکشن پڑے تھے۔ یہ جگہ مریضوں کو الگ رکھنے کے لیے استعمال ہوتی تھی؟ لیو نے ہلکی آواز میں پوچھا۔ الیاس نے سر ہلایا، اور تجربات کے لیے بھی۔ اچانک مکل نے کیمرے کی اسکرین پر ایک سایہ دیکھا جو ان کے پیچھے سے گزر گیا تھا۔ وہ پلٹا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ تم نے کچھ دیکھا؟ آسٹریٹ نے پوچھا۔ مجھے لگا کوئی گزر گیا، شاید سائے کا وہم ہے۔ لیکن وہ سب جانتے تھے اب یہ صرف وہم نہیں تھا۔ جب وہ آگے بڑھے، دائیں طرف ایک کمرہ نظر آیا جس پر زنگ آلود تختی لگی تھی، ڈاکٹر ہالورسن، نیورو بایو کنڈیشننگ یونٹ۔
दरवाज़ा खुद ब खुद थोड़ा सा खुल गया। अंदर अंधेरा, पुरानी कुर्सी और एक दीवार पर लटकी मरीजों की तस्वीर थी। हर तस्वीर में चेहरे कटे, आंखें बंद या मुस्कुराहट ज़बरदस्ती की गई थी। अचानक कमरे की बत्तियां टमटमाए और स्पीकर सिस्टम से एक पुराना रिकॉर्ड बजने लगा। आज हम मरीज़ नंबर 47 पर नई दवा का तजुर्बा कर रहे हैं। अगर वो चीखे तो खुराक बढ़ा दी जाएगी। सब ने एक साथ पीछे हटकर दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर शोर, चीख, एक दरवाज़ा जोर से बंद हुआ। भागो, इलियास ने कहा। ग्रुप 2 हिस्सों में बट गया। लियो, मिकल और ऑस्ट्रेड एक तरफ, इलियास और यूनास दूसरी तरफ भागे। हॉल में रोशनी गायब हो गई, सिर्फ कैमरा की नाइट विजन बाकी थी। हॉल के दोनों सरों पे गूंजती चीखों और भागते कदमों की आवाज़ों के साथ हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। तारीकी में सिर्फ कैमरा की नाइट विजन या कभी कभार टॉर्च की लरजती रोशनी बची थी। मिकेल, लीवो और ऑस्ट्रेड एक पुराने मरीज वार्ड में छुप गए। दीवारों पर खून से लिखी खराशें थीं, जैसे नाखूनों से चाक की तरह लिखा गया हो, वो वापस आएगा, हमें दूसरे लोगों को ढूंढना होगा। लीवो ने घबराते हुए कहा, नहीं, अभी नहीं, ये जगह हमें अलग कर रही है। ऑस्ट्रेड ने धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा। दूसरी तरफ इलियास और यूनास एक बंद दरवाजे के पास रुके। दरवाजा खुद ब खुद खुला और अंदर से एक ठंडी सफेद रोशनी छिनकर आई। अंदर दाखिल होते ही इन दोनों ने देखा कि एक बिस्तर पर किसी को बांधा गया था, पर उसके जिस्म की जगह सिर्फ सियाह राख बची थी। यूनास ने सरगोशी की, ये कोई आम रूहें नहीं है, ये मारती हैं, तजुर्बा करती हैं। फिर ऑस्ट्रेड की चीख सुनाई दी। इलियास और यूनास भागे, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो सिर्फ मिकेल और लीवो बाकी थे। वो हमारे साथ थी, बस एक लम्हे को मुड़ी थी। मिकेल कैमरे के साथ दीवानावार इधर उधर देख रहा था। हमें उसे ढूंढना होगा, लीवो रोने लगी। इलियास ने ऑस्ट्रेड का नाम पुकारा, लेकिन हर आवाज अंधेरे में डूब जाती थी। फिर एक साया चलता हुआ नजर आया। मिकेल ने कैमरा उस पर मुरकूज किया और स्क्रीन पर ऑस्ट्रेड की छवि नजर आई। वो एक पुरानी अस्पताल के लिबास में थी, आंखें खाली और चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट। वो ऑस्ट्रेड नहीं है, इलियास ने आहिस्ता से कहा। वो अब उनमें से एक है। Called High Naked। सभी लेवल बाई में खामोशी नहीं थी। हर दीवार जैसे सांस ले रही थी और हर राहदारी में माजी की चीखें बाज़गश्त बनकर गूंज रही थीं। इलियास, मिकल, लीवो और यूनास अस्पताल के निचले तरीन हिस्से में पहुंच चुके थे। ये वो जगह थी जहां अमले ने वो सब किया था जो दुनिया से छुपाया गया। एक पुरानी अलमारी से फाइलें मिले, जंग आलूद पुराने कागजों से भरी हुई। एक फाइल पर लिखा था, मरीज 47, मज़ामीन बराए तजुर्बात ज़हनी, असरात बायोकेमिकल, तजुर्बा मुकम्मल, नताइज नाकामी, रूहानी इख्तिलाल, पुरतशद्दुद रवैया। लीवो ने फाइल को पढ़ते हुए कहा, ये तजुर्बे मरीजों के दिमाग पर नहीं, उनकी रूहों पर किए गए थे। उन्हें मौत की हद तक पहुंचाकर दोबारा वापस लाया जाता था। मिकल ने फाइलें खोलते हुए एक तस्वीर निकाली। डॉक्टर हैलवर्सन सफ़ेद कूट में मुस्कुराता हुआ, मगर उसके पीछे खड़ी मरीजा की आंखें सुर्ख थीं, जैसे जिंदा नहीं बल्कि किसी और दुनिया से आई हो। ये सिर्फ पागल खाना नहीं था, ये तजुर्बागाह थी, रूहों को तोड़ने और काबू पाने की। इलियास ने कहा। अचानक कमरा सर्द हो गया। फाइलें उड़ने लगे, बल्ब फटने लगे। एक भारी सांस, जैसे किसी ने उनके बीच खड़े होकर गहरी हवा भरी हो। वो आ रहा है, लीवो ने खौफजदा लहजे में कहा। दरवाजा बंद हो गया। इन सब को एक लम्हे में एहसास हुआ वो अब बंद हो चुके थे। अस्पताल ने उन्हें कैद कर लिया था। फिर एक आवाज, मरीज नंबर 51 दाखिल हो चुका है, तजुर्बा दोबारा शुरू किया जाए। रोशनी गई। एक पुराना ऑपरेटिंग बल्ब झोलता हुआ जलने लगा। यूनास ने पीछे मुड़कर देखा और चीख मार दी। दीवार पर ऑस्ट्रेड का जिस्म झूर रहा था, आंखें सफ़ेद, चेहरे पर एक दर्दनाक मुस्कुराहट।
इलियास और मिकल ने उसे नीचे उतारने की कोशिश की, मगर जैसे ही हाथ लगे जिस्म राख बनकर बिखर गया। ये उनकी दुनिया है, हम उनके खेल का हिस्सा बन चुके हैं, मिकल ने कहा। लीवो की सांस तेज हो रही थी। अचानक उसने कहा, हमें अस्पताल का मरकजी सडरूम ढूंढना होगा। शायद वहां से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए, या उन सब का इख्तिताम थी, और दरवाजे पर एक पुराना कोड लॉक लगा था। खुशकिस्मती से लीवो ने फाइल्स में एक पुरानी पर्ची देखी थी जिस पर कोड लिखा था 5138। कोड डालते ही दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरे में एक बड़ी स्क्रीन, पुराने कंट्रोल पैनल और दर्जनों रिकॉर्डिंग कैसेटें पड़ी थीं। दीवार पर एक पुरानी सुर्ख लाइट चमक रही थी जिस पर लिखा था लाइव एक्सपेरिमेंट फीड। ये सब कुछ अभी भी चल रहा है? यूनास ने हैरत से कहा। नहीं, ये रुका ही नहीं कभी, लीवो ने आहिस्ता कहा। इसी लम्हे एक कैस्ट खुद चलने लगी। इसमें डॉक्टर हॉलवर्सन की आवाज सुनाई दी। अगर मौत को काबू में लाया जा सकता है तो हम खुदा बन सकते हैं, मगर कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। इसी लम्हे दरवाजा बंद हुआ। लीवो पीछे पलटी और वहां डॉक्टर हॉलवर्सन खड़ा था, मगर वो इंसान नहीं था। इसका चेहरा आधा जल चुका था, आंखें खाली और सफेद कोट पर खून के धब्बे। उसने हाथ उठाया और लीवो की आंखों से खून बहने लगा। वो चीखी, मगर आवाज जैसे गूंज में तहलील हो गई। इलियास और मिकल ने उसे खींचने की कोशिश की, मगर लीवो ने खुद को पीछे धकेल दिया। ये जगह मुझे नहीं छोड़ेगी, तुम दोनों को निकलना होगा। और फिर उसने सर्वर कंट्रोल पर हाथ मारकर बिजली का निजाम बंद कर दिया। एक जोरदार धमाका हुआ, लाइटें बुझ गईं और दीवारों से चीखें सुनाई देने लगीं। हर तरफ आग के शोले उठने लगे। यूनास, इलियास और मिकल किसी तरह ऊपर की तरफ भागने लगे। राहदारियां अब बदल चुकी थीं, जैसे खुद अस्पताल उन्हें कैद करना चाहता हो। यूनास ने एक दरवाज़ा खोला, मगर एक साया उस पर हमलावर हुआ। सिर्फ चीख सुनाई दी और फिर खून। इलियास और मिकल ने दरवाज़ा बंद किया और भागते भागते एक खिड़की तक पहुंचे। वो टूटी हुई थी। बाहर जंगल की सर्द हवा आ रही थी। कूदो! इलियास चलाया। दोनों ने बाहर छलांग लगा दी। इलियास और मिकल ने खिड़की से छलांग लगा दी। इनके जिस्म जमीन पे गिरे और कीचड़ में लथपथ हो गए। जंगल की सर्द हवा उनके चेहरों से टकरा रही थी, मगर वो जिंदा थे। पीछे अस्पताल की खिड़कियां अंधेरे में डूबी हुई थीं, मगर अंदर से सरगोशियों की हल्की सी गूंज अब भी आ रही थी। दोनों भागते हुए जंगल की राली। इनके कदम लड़खड़ा रहे थे और हर दरख्त के पीछे उन्हें हॉलवर्सन की आंखें महसूस हो रही थीं। कई घंटों बाद वो एक करीबी गांव की हुदूद में पहुंचे। मकामी पुलिस को इत्तला दी गई और एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन जब उन्होंने अस्पताल का जिक्र किया, कॉल्डहाइम, तो पुलिस वालों के चेहरे सपाट हो गए। वो जगह बंद हो चुकी है, वहां कोई दाखिल नहीं होता, एक ऑफिसर ने कहा। इलियास ने चीख कर जवाब दिया, हम वहां थे, हमारे दोस्त मर चुके हैं, वो जगह जिंदा है। मगर कोई यकीन करने को तैयार नहीं था। रिपोर्ट्स में दर्ज हुआ 2 नौजवान जंगल में पाए गए, शदीद ज़हनी दबाव का शिकार, बाकी टीम लापता। अस्पताल की इमारत तबाहशुदा और गैर फाल पाई गई। हफ्ते बाद मिकल ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वो किसी से बात नहीं करता, सिर्फ एक चीज़ दोहराता है, वो वापस आएंगे। वो कभी बंद नहीं हुआ। इलियास ने वीडियो फुटेज पुलिस को दी, मगर जब वो देखी गई सब कुछ सफ़ेद धुंध में लिपटा हुआ था। कोई चेहरा, कोई आवाज़, कुछ भी वाज़ा न था। आखिरी सीन, रात का वक्त है, एक सुनसान कमरा। मिकल अपने कैमरे को देख रहा है। अचानक उसकी स्क्रीन पर दोबारा सुर्ख लाइट जलती है, लाइव एक्सपेरिमेंट फीड। स्क्रीन पर डॉक्टर हॉलवर्सन नज़र आता है। वो मुस्कुरा रहा है। मरीज नंबर 52 दाखिल हो चुका है। इख्तिताम। आउटर लाइन। कॉल्डहाइम के दरवाजे बंद हो गए, मगर जो रूहें बाहर आईं वो अब आज़ाद है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि खौफ अभी ख़त्म नहीं हुआ।